شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہم بدھ کے دن کے تمام ان عوامل پر غور کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے، دوسرا سیشن ہے۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، یہ آپ کے کام آئے گا، کیونکہ یہ سٹڈی آپ کو کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ یہ ہم نے جتنے دن مسیح یروشلم کے ایریا میں اپنی خدمت میں مصروف رہا، تو ہر دن کی مصروفیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا۔ جمعے والے دن کہاں پر تھے، ہفتے والے دن کہاں پر تھے، اتوار والے دن کہاں پر تھے، سوموار والے دن کہاں پر تھے، منگل والے دن کہاں پر تھے، بدھ کے دن کہاں پر تھے۔ آگے بھی ہم لے کے جائیں گے جب تک وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر شاگردوں کو نہیں ملتے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو لکھتے رہیں، اور آپ کے لیے یہ ایک اچھی سٹڈی بن جائے گی۔ یہ مقدس ہفتہ جو ہے، بلکہ یہ ہفتہ نہیں ہے، یہ مسیح کی زندگی کے آخری دنوں کی خدمت ہے۔ یہ 10 دن کی خدمت ہے، اور 10 دن کی خدمت 10 احکام آپ ان کو جوڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بڑی خوشی اور اطمینان اور برکت ملے گی۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ بدھ والے دن پطرس کے انکار پر مسیح کو کتنا بڑا دکھ ہوا، جب آپ کے وعدے کرنے والے، عہد کرنے والے، کمیٹڈ لوگ آپ کے منہ پر کہیں کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا وہ ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ نکلا۔ ہمارے سامنے کوئی اگر ہمارا جاننے والا مکر جائے، انکاری ہو جائے، تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اس نے میری عزت نہیں رکھی، اگر اس نے آنکھیں پھیر لی ہیں، یہ طوطا چشم ہو چکا ہے، اب میں بھی اس کو گندا کروں گا۔ وہ بھی پھر نکال کے وہ باتیں کرتا ہے، وہ کیسٹیں چلاتا ہے، وہ ویڈیو چلاتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے، وہ لیٹر دکھاتا ہے، وہ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو کبھی خیال میں بھی نہیں آئی۔ جھوٹ، الزام، طنز، من گھڑت کہانیاں، جو کچھ بھی ہو سکے وہ کرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح خاموش رہا، اور یہ یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا بالا خانہ میں، اے پطرس میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ کسی جگہ پر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کسی جگہ پر یسوع نے کسی کے لیے دعا کی ہو۔ ہر جگہ پر اس نے اختیار دکھایا ہے، لیکن پطرس کو کہا گیا تیرے لیے میں نے دعا کی ہے کہ جب تو چلا جائے یا جب تو مڑ کے آئے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اور اب وہی پطرس ہے جو کہہ رہا ہے میں اسے جانتا نہیں ہوں، بلکہ لکھا ہے اس نے لعنت کی، اور لعنت کر کے کہتا ہے میں اسے جانتا نہیں۔ اور اب اس شخص کو کہہ رہا ہے جس نے ساری رات مار کھائی ہے، جس کے منہ پر تھوکا گیا ہے، جس کے بال نوچے گئے ہیں، جس کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں، جس پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک سرکنڈا، ایک کانا پکڑا دیا گیا ہے، جسے ذلیل کیا جا رہا ہے، انتہا کی بے عزتی کی گئی ہے۔ لوگ جس کے سائے میں
बैठकर उनकी आंखें खुल जाती थी, बीमार शिफा पा जाते थे, कपड़े को छूने से 12-12 साल की बीमारियां जाती रहती थी। 38 साल का बीमार है, जिसने हाथ लगाया तो यीशु ने उसको खड़ा कर दिया। जो लूले थे, पांजे थे, जो जुड़े हुए शख्स थे, यीशु ने हाथ पकड़ा तो उनको उठा दिया। और आज वही है जिसको खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। किसके लिए? मेरे लिए, उस पतरस के लिए जो इनकार करता है। कभी उसके मिजाज में जाकर देखें। और मरकस की अंजील के मुताबिक यीशु नासरी को 9 बजे सलीब पर दे दिया। 3 बजे तक अंधेरा छा गया। इस टाइम पे सिपाहियों ने तख्ती लिखकर लगा दी, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है। वो तख्ती यूनानी में, रूमी जुबान में, इतालवी जुबान में और अबरानी में लिखी गई। उसके कपड़े बांट दिए और 12 इंच का नेजा पसली में घोंप दिया। मगदलिनी और मां मरियम और मरियम क्लोपास की जो बीवी थी और सलोमी वहां पर मौजूद थी। लूका 23वें बाब की 39वीं आयत में लिखा हुआ ये सब कुछ। ये सारे आंखों देखे गवाह हैं। ये कोई कहानी नहीं है सुनी सुनाई। मां कहानियां नहीं सुनाती, मां तो हकीकत बताती है, वो तो बैन डालती है। उसका बच्चा जिसने कभी मां को तंग नहीं किया, जो बच्चा कभी रात को रोया नहीं, जिसको कभी बुखार नहीं चढ़ा, जिसको कभी दाने नहीं निकले, जिसको कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब अंदाजा करें कि अब उस बच्चे की क्या हालत है। और मां देख रही है उसके सामने, और मां को क्या फीलिंग हो रही है। कभी उस बात को देखो जिसके बारे में शमौन बुजुर्ग ने कह दिया था कि तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। वो तलवार दोहरी तलवार है। एक तरफ मां खून के घूंट पी रही है और बेटा देख रहा है अपनी मां को, और मां अपने बेटे को देख रही है कि कोई नहीं जो आज इसके साथ जिस्मानी तौर पर को खड़ा हो सवाए यूहन्ना के, वो भी अंडर 18 था और यीशु का रिश्तेदार था। वो मर जाने को तैयार था कि यीशु के लिए अगर मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। कई दफा बच्चे जो हैं वो साफ दिल होते हैं, इसीलिए मसीह खुदावंद ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। इसीलिए यूहन्ना बार बार कहता है वो शिगिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। कलाम मुकद्दस में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब वो चुन ले तो फिर उसको मोहब्बत दिखाओ जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। और जिससे यीशु मोहब्बत रखता था वो रूमियों की तलवारों के, नेज़ों के और कोड़ों के साए तले सलीब तक पहुंचा और उधर खड़ा है और यीशु उसके साथ बातें कर रहा है। यूहन्ना मुझे भरोसा है ये तेरी मां है। अपनी मां की जिम्मेदारी यूहन्ना को दे रहा है। वो जिनको प्यार करता है उनको जिम्मेदारियां देता है, उनको चाहता है कि वो जिम्मेदारियां निभाएं और ना सिर्फ जिम्मेदारियां निभाएं बल्कि उनको
और ज्यादा भेद मकाशफे देता है। अंजील लिखी है यूहन्ना ने, खतूत लिखे हैं यूहन्ना ने, और मकाशफा भेद आसमान की जो गहरी बातें हैं जो सिर्फ आपको दानियल की किताब में मिलेंगी और मकाशफा की किताब में मिलेंगी और किसी जगह पर नहीं मिलेगी। दूसरी जगहों पर वाकयात हैं, लेकिन जो भेद हैं, जो कलर्स हैं, जो शाइनिंग है, जो चमक है, आसमान की तमाम तरह की सीक्रेट जो है वो उसी शागिर्द को दी गई जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। आज भी अगर कोई कलाम की गहरी बातें और गहरे मकाशफात और गहरे भेद और वो चीजें जो छिलके अतार के अंदर की गिरी, अंदर का जो भेद है वो आपको देता है, तो आप समझे कि उसे यीशु प्यार करता है। अगर इधर उधर की बोंगियां मारते रहें तो फिर फिक्र करें कि कहीं किसी जगह पर यहूदा की तरह यीशु का सौदा करने वाले तो नहीं, सिर्फ हमारी नजर पैसे पर तो नहीं टिकी हुई। किसी जगह पे साली को खुश करना है, किसी जगह पे साले को खुश करना है, किसी जगह पे रिश्तेदारों को खुश करना है, किसी जगह पे लोगों को खुश करना है, और इसी बातों को सामने रख के यहूदा इस्करियोती की तरह यीशु का सौदा करते जा रहे हैं। और जो यीशु का सौदा करते हैं, आखिरकार क्या हुआ? जब उसकी आंखों से पर्दा उठा दिया, जब सीन नमाया हुआ, तो वही यहूदा इस्करियोती चला उठा कि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा उस लड़की को जिसकी खातर मैंने अपने उस्ताद का सौदा कर दिया। कैसे रिश्तेदारों को दिखाऊंगा कि मैं वफादार हूं जिसने एक अपने मौसन को बेच दिया। कैसे शागिर्दों के साथ, अपने हम खिदमत लोगों के साथ खड़ा होऊंगा जब उनको पता चलेगा कि ये वो गद्दार है जिसने अपने ही उस्ताद को बेच दिया। और इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया, इतना परेशान हो गया, इतना हवास बाख्ता हो गया कि जाकर खुदकुशी कर ली। माफी मांगने की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि माफी मांगने वाले बड़े दलेर होते हैं, बहादुर लोग हैं जो अपना गुनाह मानते हैं, बहादुर लोग हैं जो माफ करते हैं, बहादुर लोग हैं जो माफी मांगते हैं। बुज़दिल लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, जो खुदकुशी करते हैं, जो उज़र ढूंढते हैं। और यहूदा इस्करियोती ने ऐसा ही किया। जो पैसे इकट्ठे किए वो भी फेंक गया, और उन फेंके हुए पैसों से क्या खरीदा गया? कब्रिस्तान, एक ऐसा खेत खरीदा गया जहां पर मुसाफिर और नामालूम लोग, जिनका कोई पता नहीं कहां के हैं, परदेसी हैं, उनके लिए एक खेत खरीदा गया कि उनको वहां पर दफन कर दे। जो अपने उस्ताद का, अपने मौसन का, अपने निजात दहिंदा का, अपने खुदावंद का सौदा करते हैं, उसके नाम पे उसको ठगते हैं, उसको जलीलो ख्वार करते हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, बाद में उनके पैसे के जरिया से उनके ही घर कब्रिस्तान बन जाते हैं, उनकी आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, और लोग लानत करते हैं कि ऐसा लानती शख्स है जिसने मसीह को बेच दिया। हम देखें कि हम कहां कहां पर मसीह को बेच रहे हैं, कहां कहां पर उसको जलील कर रहे हैं। और ये जो आपको सलीब पर यीशु ने लंगोटी बंधी हुई है और आपको नजर आ रहा है कि सलीब पर चढ़ा है, हकीकत में यीशु के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगा था, टोटली तौर पर उसको नंगा करके सलीब दिया गया। इंतहा की बेइज्जती कर दी गई, जलील किया गया। ये खबीस लोग हैं, जालिम लोग हैं, जो किसी की इज्जत को भी बिल्कुल
खत्म कर देते हैं, लेकिन उसने अपने आप को बिल्कुल खामोशी से पेश कर दिया कि मैं जिसे प्यार करता हूं, मैं जिसे चाहता हूं, मैं उसके लिए जैसे भी हूं परवाह नहीं। इसीलिए मसीह ने दुआ की, अपने लिए नहीं, मेरे और आपके लिए कहा कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। यहूदी तो जानते थे सब कुछ, गैर अक़वाम नहीं जानते कि वो यीशु के साथ क्या करते हैं। कोई यीशु को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर हमारे लिए दुआ हो चुकी है। हमारे लिए दरवाजे की कुंडी ढीली है, हमारे लिए दरवाजे खुले रहते हैं। हम जब जी चाहें यीशु के पास आ सकते हैं। वो हमें चाहता है, और उसने कहा कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यहूदी तो जानते थे सब कुछ। जो लोग कहते हैं कि यहूदियों को कहा गया कि ये नहीं जानते, वो सब कुछ जानते थे। उसके तो पैदा होने के बारे में उन्होंने कह दिया कि फलां जगह पे उसकी पैदाइश होनी चाहिए। जब वो हैकल में गया तो तब लोगों को पता चल गया कि ये कौन शख्स है। जब वो गोद में था शमा उनके, तो उसने कह दिया ये खुदा की निजात है। जब मरियम एलिजबेथ के घर गई तो उसने कह दिया मेरे खुदावंद की मां आई है। वही तूमा वो कह रहा है मेरे खुदा है, मेरे खुदावंद। वही मरियम और मार्था, उनके सामने यीशु कह रहा है मैं क़यामत और जिंदगी हूं। कई लोग कहते हैं कब यीशु ने कहा था कि मैं खुदा हूं? ओ मूर्खो, कभी तो पढ़ो बाइबल को, कभी तो आंखें खोल के पढ़ो। कई कहते हैं जी कब उसने कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। वो ये कह रहा है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और वो क्या कहे, कौन है क़यामत और जिंदगी? कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई औलिया, कोई वली, कोई है जो ये कहे कि मैं क़यामत और जिंदगी हूं? जितने आज तक इस दुनिया में पैदा हुए हैं, आदम से लेकर यूहन्ना तक, सब के सब कब्रों के अंदर पड़े हुए। वाहिद एक कब्र है जो यीशु की है, जो आज भी सबको दिखा रही है कि कभी मेरे अंदर कोई आया और वो मेरा मुंह खोल के चला गया। कब्र का मुंह खुला है, हैरानगी के साथ, परेशानी के साथ, मायूसी के साथ। मौत कांप गई है कि मैं किसी को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकी। नेजा भी उसके घोंपा गया, स्लीपर उसको टांग दिया गया। 9 बजे उसको स्लीपर टांग दिया। 9 से आप देखिए कि 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा और 6 बजे यीशु मसीह ने जान दी। 6 घंटे वो मेरे लिए और आपके लिए और इस दुनिया के लिए सलीब पर टंगा रहा। और उधर हैकल में जब 6 बज गए तो बर्रा ज़बा किया गया ताकि कौम की निजात का दरवाजा खुल जाए, कफारे का बर्रा ज़बा किया जाए। इधर 6 बजे जैसे ही सूरज का गुरूब होने का टाइम हुआ, जैसे ही आगे जुमेरात का दिन शुरू हुआ, तो यीशु ने अपनी जान दे दी। यीशु ने कहा मैं अपना रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। उससे कोई रूह ले नहीं सका, उसे मौत मार नहीं सकी। अगले हम बयान में चलेंगे और इस पर गौर करेंगे कि यीशु मरा या नहीं मरा। यीशु ने किस तरह से यह कहा कि मैं अपना रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे दोस्तों, खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें, रूह कुदस की ताबेदारी में रहें, घुटने टेकें और पूछते रहें, हाथ उठाएं, आंखें खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और कहें कि ऐ खुदाए पाक रूह मेरे साथ बात कर, मेरी आंखें खोल दे, मेरे कान खोल दे, मेरे जिस्म को इस तरह का सेंसिटिव कर दे कि मैं तेरी फीलिंग्स ले सकूं, मैं तुझे महसूस कर सकूं कि तू मुझे प्यार करता है। खुदावंद आपको बरकत दे।